Hello, welcome back to my channel Sneha Speaks, where I talk about anything and everything that's happening in the world because I just love talking. And I'm also a second year PhD student in chemistry at IISER Pune. So I try to help you all navigate through your academic journey, particularly in basic sciences. So last time when I posted a video about what after BSMS, many students asked me in my DMs and in the comments to help them regarding their PhD applications. So here I am with that video and I've noted everything down in my laptop. So without any further ado, let's get into the video. So today's topic is basically sharing my knowledge and research about applying for PhD in different countries of the world so that you struggle a little less on figuring out where, when, how and whom to apply, and you can focus on the more important stuffs. So this is from my personal experience when I was applying for PhD. जो मैंने research किया था, मैंने वो सबको club करके I am trying to present it to you all. So this video will be divided in parts according to different countries, and I've selected the 10 most popular countries where I've seen students applying for a PhD. So the first country is no-brainer, it's India. So in India, if you are from an IISER or any CFTI, that is a centrally funded technical institute like IITs, NITs, etc., and if you have a CPI of 8+, then you are eligible to apply for a PhD in any other CFTI or an IISER. So अगर आपका CPI 8+ है, you can apply and then they will shortlist and call you for an interview. Also, if you want me to make a video on how to approach these interviews and what to expect, what not to expect, please do let me know in the comments so I can make a separate video on it. And also, if you're not a 5th year BSMS or an MSc student, but if you also want guidance in your BSMS course to navigate through the coursework and last minute exam preparation and previous year paper solving, ये सब कुछ के लिए, please do follow another channel that I've started with my friend BSMS Sarthi, where we help you with all these things. I promise you, आप अगर हमारा channel follow करोगे, you will definitely fall in love with chemistry, and it's definitely one of a kind on YouTube. You will not find any other channel, I mean not focusing on competitive exams definitely, but on your coursework, IISER coursework. Okay, so getting back to the video. So in India, if you have 8+ CPI, you can apply and you are eligible. You might be called for an interview. But if you are selected, you would be getting the money from the institute. The other options are you clear CSIR exam and GATE exam. If you clear CSIR exam, then like you get the money, you get the same amount, 37,000 for the first 2 years and 42 for the next 3 years. You get the same amount, but you get it from the government and not from your institute. And trust me, I know many of you all might have 8+ ka CPI, but trust me, qualifying CSIR is definitely a boon. It is definitely a boon to get your scholarship from the government directly, and it is also a great addition to your CV. Trust me. And GATE is also important, but GATE में आपको बहुत अच्छा rank करना पड़ता है. But still, even if you're qualifying GATE, you still get the you're eligible to apply, but you get the scholarship or the stipend from the institute. Now, this is for all the CFTIs. Okay, and application forms normally आप ऐसे October and November के आसपास आप देखना. Actually, December, January के आसपास forms open होता है. तो जो भी आपको जहाँ पे भी अप्लाई करना है जिस इंस्टीट्यूट में, उनके वेब पेज पे जाके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाके आप चेक करते रहना जब फॉर्म ओपन होता है तब. एंड ऑल्सो अ प्रो टिप इज, प्लीज़ आप अभी शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए कि आपको कौन से फैकल्टीज़ के साथ काम करना है, एंड स्टार्ट राइटिंग देम कोल्ड ईमेल्स. और डू लेट मी नो इफ़ यू वांट हेल्प कि कैसे कोल्ड ईमेल ड्राफ्ट करते हैं एंड एवरीथिंग. बिलीव मी, मोस्ट बिग शॉट फैकल्टीज इंटरव्यू होने से पहले ही वो डिसाइड कर चुके होते हैं उन्हें किन्हें अपने लैब में लेना है. सो इट्स नेवर टू अर्ली. स्टार्ट राइटिंग ईमेल्स टू द प्रोफेसर्स ऑफ योर चॉइस आज से ही. देन उसके अलावा TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम जिसका फॉर्म आई थिंक सितंबर अक्टूबर में
सितंबर में आएगा खुलता है एंड दिसंबर में उनका एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है. जनवरी फरवरी में उनका ऑफलाइन इंटरव्यू होता है. एंड ऑफलाइन इंटरव्यू इज एक्चुअली डिफिकल्ट. आई मीन सिलेक्शन रेट इज़ वेरी लो. मैंने मुंबई में दिया था, तो आई नो ओनली 7 or 8 of us गॉट सिलेक्टेड. उसमें भी अगर आपको इंटरव्यू में एक्सपोजर में आपको हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. तो TIFR का जो एग्ज़ाम है, आई वुड सजेस्ट कि सब लोग, बहुत मिनिमल फीस है, आई वुड सजेस्ट कि सब लोग आप प्लीज़ फॉर्म भरिए, बिकॉज द इंटरव्यू इज डेफिनेटली वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. सो द नेक्स्ट पॉपुलर चॉइस इज द US, जहाँ पे एप्लीकेशंस नॉर्मली ओपन अराउंड सितंबर एंड वो 1 दिसंबर तक बंद हो जाते हैं. वहाँ पे भी अप्लाई करने के लिए प्लीज स्टार्ट राइटिंग ईमेल्स टू द प्रोफेसर्स ऑफ योर चॉइस. नॉट दैट इट काउंट्स, बट इट डेफिनेटली मेक्स यू सीन. और जब आप फॉर्म भरोगे तभी आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दे रिक्वायर द TOEFL और द IELTS का स्कोर. सो मेक श्योर कि आप वो एग्ज़ाम उससे पहले दे चुके मतलब अभी जो आपके पास टाइम है सितंबर तक, उसमें ट्राई कीजिए कि आप वो एग्ज़ाम दे दो. एंड एग्ज़ाम का फीस आई एम लेटिंग यू नो इट्स अराउंड 15 to 14K एक अटेम्प्ट के लिए. आई नो इट्स कॉस्टली, तो प्लीज़ मेक द फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, और उसके लिए थोड़ा बहुत तो प्लीज़ प्रिपेयर करके जाना. If you need any guidance on how to prepare, not that I'm an expert, but मैं guidance तो दे ही सकती हूँ. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. और हाँ, तो TOEFL का जो स्कोर होता है, एक कट ऑफ होता है, हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग ऐसे कट ऑफ रहता है. तो दैट कट ऑफ के ऊपर आपको मिला तो यू आर एलिजिबल, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन नहीं सिलेक्ट होगा. और जब आप अप्लाई करोगे, प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ एकदम हाई रेटेड यूनिवर्सिटीज़, मिडिल के, बॉटम के, मतलब ऐसे प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए. एंड ऑल्सो एज आई सेड कि आप कोल्ड मेल करना स्टार्ट कीजिए अभी से ही. एंड द एप्लीकेशंस दे ऑल्सो कॉस्ट INR में अराउंड 7K, 8K, इवन 10K तक जाता है. सो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करके रखिए, सोच के रखिए कि आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कितने पैसे आपको खर्च करना है एप्लीकेशंस में. एंड ऑल्सो जब आप अप्लाई करते हो तो यू कैन नॉट ऑब्वियसली मेक पेमेंट्स थ्रू गूगल पे और पेटीएम जैसे एप्स. सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप वो सब अरेंजमेंट्स करके रखिए. एंड ऑल्सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड द एप्लीकेशन फी वेवर, जहाँ पे मैंने तो अप्लाई किया था एंड जितनी जगह पे मैंने अप्लाई किया था इट गॉट अप्रूव. तो मैंने कभी अपने एप्लीकेशंस के लिए आई नेवर हैड टू पे अ फी. वहाँ पे बेसिकली यू नीड टू राइट वाई द फी वेवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और आपके मार्क्स वगैरह अपलोड करना पड़ता है अलग से, बेस्ड ऑन द मेरिट एंड बेस्ड ऑन योर नीड अप्रूव हो जाता है. तो बट मैनी पीपल डू नॉट नो कि दिस ऑप्शन एग्जिस्ट, तो आपको वही इन्फॉर्म करना है. और US में क्या होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो, सो फॉर द फर्स्ट ईयर यू आर मोस्टली एंगेज्ड इन TA, दैट इज यू हैव टू टीच योर जूनियर्स, बेसिकली उनका क्लासेस लेना होता है. और इसी दौरान आपका लैब रोटेशन चलता है, आप अलग अलग लैब में जाके देखते हो कि कैसा काम हो रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है. एंड इन योर सेकेंड ईयर यू एक्चुअली join a particular faculty's lab and you start doing your research work. So और हाँ, अगर जब आपको अप्लाई करना होता है, 2 things are required: your statement of objective and your personal statement. Words terminology अलग अलग होगा, but basically your statement of objective is a scientific essay जहाँ पे आपको आपके previous experiences लिखना है and how everything motivated you to choose this particular university, particular lab और ये सब. And one is a personal statement where you have to explain, like कोई science नहीं, personal story की what motivates you to do science and why this particular area. तो ये सब जो चीज़ें हैं, not that you cannot take help of AI, but in a place where thousands of AI generated stuff come, obviously originality stands out. तो शांति से आप बैठिए, राइट, रीराइट, थिंक, ओवर थिंक एंड कीप दीज स्टफ्स रेडी बिफोर द एप्लीकेशन पोर्टल ओपन्स. द थर्ड कंट्री इज द यूनाइटेड किंगडम और UK. अगेन पोर्टल ओपन्स अराउंड सितंबर एंड इट क्लोजेज एज लेट एज मे, नेक्स्ट ईयर का मे. बट यहाँ पे देयर इज अ कैच. some professor might be willing to take you as a PhD, but securing a PhD position does not mean कि आपको automatically funding मिल गया है. कभी कभी ऐसे होता है कि the professors have a lot of research grant जहाँ से वो आपको आपका stipend देंगे,
बट ऐसे बहुत जगह होता है कि आपको अलग से कोई गवर्नमेंट फंडेड एजेंसीज को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है. वन ऑफ द वेरी बिग एग्जाम्पल्स इज द गेट्स कैम्ब्रिज. वहाँ पे यू ऑल्सो हैव टू राइट अ सेपरेट राइट अप which focuses on your extracurriculars and how willing you are to help people and everything. तो उसके लिए आपको अलग से सब कुछ लिखना पड़ता है. और ये जो स्कॉलरशिप पोर्टल्स है वो दिसंबर तक ही बंद हो जाता है. तो मे बी द पीएचडी पोर्टल इज ओपन टिल मे, बट स्कॉलरशिप ही नहीं मिला तो देन मेनी टाइम्स आपका पीएचडी भी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाता है अगर आपको इफ़ यू कैन नॉट सिक्योर फंडिंग. सो और यहाँ पे भी यूके में भी प्लीज स्टार्ट राइटिंग कोल्ड ईमेल्स टू योर प्रोफेसर्स ऑफ चॉइस बिकॉज दैट विल डेफिनेटली मेक यू स्टैंड आउट. एंड यूके में भी ऐसा होता है कि द प्रोफेसर्स इफ दे लाइक योर रेज्यूमे एंड योर वर्क एक्सपीरियंस दे विल कॉन्टैक्ट यू और आपका एक इंटरव्यू होता है. यूएसए में देयर इज नो ऑफिशियल इंटरव्यू एज इन इनफॉर्मल मीट्स होते हैं, इनफॉर्मल की क्यों काम करना है और ये सब. बट यूके में प्रॉपर एकेडमिक क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और ऐसा एक इंटरव्यू होता है थ्रू जी मीट और जूम और व्हाटएवर. सो दैट्स अबाउट यूके. द नेक्स्ट वन इज स्विट्जरलैंड. सो स्विट्जरलैंड में क्या है कि इट्स ऑल्सो you are not a PhD, like you're not a student, you are hired as an employee. और यहाँ पे क्या होता है कि there is nothing called application portal, मतलब ऐसा इंटरव्यू जैसा. बेसिकली क्या होता है कि जॉब ओपनिंग्स जैसे आता है लिंक्डइन पे हो या न्यूज़पेपर्स में हो, तो स्विट्जरलैंड में भी इफ द लैब्स हैव ओपनिंग्स फॉर स्टूडेंट इनटेक्स, the PI or the supervisor would post it on various social media platforms or even on their web page. तो आपको वो continuously check करना रहेगा. And if there is an opening, you have to apply और आपको प्रोफेसर से बात करना होगा. TOEFL IELTS is mandatory. And यहाँ पर जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा that can be through the grant of a particular professor जिनसे आप PhD करोगे, या it can be from the Swiss government who will directly give you the salary. The next country is Germany, again a very popular choice. So यहाँ पे also you are hired as employees. यहाँ पे you are given your salary, you have to pay your taxes and everything, unlike in India. यहाँ पे there is no coursework, you directly go from the first day itself, you start working on your thesis. And also note that you need to apply for an APS, that's an application evaluation center verification, before you can actually get or even apply for your German student visa. There are some institutes जहाँ पे application portal सितंबर में ही खुल जाता है. तो जर्मनी में क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हो एंड अगर वैकेंसी है, उनके पास ग्रांट है, वो डायरेक्टली आपको ले लेंगे. लाइक देयर इज नो इंस्टीट्यूट का पोर्टल एंड ऑल. कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि अगर इंस्टीट्यूट मतलब वो पर्टिकुलर फैकल्टी के पास अपना खुद का फंडिंग नहीं है उस मोमेंट पे, देन दे कैन ऑल्सो गो फॉर गवर्नमेंट का अलग से फंडिंग फॉर द स्टूडेंट. क्या होता है कि वहाँ कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल खुलता है सितंबर में एंड देयर आर गवर्नमेंट फंडिंग्स लाइक द डैड स्कॉलरशिप. तो डैड स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू कोल्ड मेल प्रोफेसर्स एंड इफ द प्रोफेसर इज इंटरेस्टेड इन सुपरवाइजिंग यू, then you along with your supervisor have to co-author a proper project proposal. and वो जो project proposal है वो आपको डैड के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा जब उसका एप्लीकेशन खुलेगा डैड का, एंड उसके वैल्यूएशन के बेसिस पे एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर पर्टिकुलर सुपरवाइजर आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है. एंड देन यू कैन जस्ट लाइक गो फॉर योर PhD विदाउट इवन द प्रोफेसर हैविंग हिज ओन फंडिंग. हाँ, ऑल्सो एक बात मैं बोलना भूल गई कि जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो यू नीड दीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. मिनिमम 3 तो चाहिए. यूएस में तो बहुत स्ट्रिक्ट ऐसे अपलोड करना होता है. जर्मनी में द प्रोफेसर हु यू वांट टू वर्क विद वो डायरेक्टली मेल करके पूछ लेंगे कि आपके बारे में पूछ लेंगे आपके पुराने प्रोफेसर से. ऐसा ऑफिशियली अपलोड करना नहीं होता है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया. बट यूएसए में प्रॉपरली ऐसे पोर्टल में अनोनिमसली आपके प्रोफेसर्स को अपलोड करना पड़ता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. सो ध्यान रखिए, बात कीजिए आपको किससे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए एंड ऑल.
नेक्स्ट कंट्री इज सिंगापुर. अगेन यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन होता है. 2 बार स्टूडेंट इनटेक होता है, एक अगस्त में होता है, एक जनवरी में होता है. फॉर द अगस्त इनटेक मतलब अगस्त 2027 इनटेक के लिए अभी मोस्टली पोर्टल खुल चुका होगा एंड मिड ऑफ नवंबर तक द पोर्टल क्लोजेस. यहाँ पे ऑल्सो पहले 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल यू इंटरेक्ट विद डिफरेंट प्रोफेसर्स एंड डिफरेंट लैब्स. आप अपना टीए ड्यूटी वगैरह करते हो, अपने कोर्स वर्क करते हो बिफोर यू एक्चुअली डिसाइड आपको कौन से लैब में ज्वाइन करना है. सो यू नीड टू डू अ मिनिमम नंबर ऑफ टीए ड्यूटी आवर्स बिफोर. मतलब आप कोर्स तो लोगे, मतलब टीए ड्यूटी आपको होगा, बट उससे पहले भी आपका ऐसे कम्युनिकेशन कोर्स होता है जो आपको लेना पड़ता है बिफोर यू आर एक्चुअली एलिजिबल टू टेक कोर्सेज फॉर योर जूनियर्स. यहाँ पे भी अगेन यू डोंट मैंडेटरीली नीड अ टॉयफल और आईएल्ट्स. किसी किसी इंस्टीट्यूट में लगता है, बट MOI दैट इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है. बेटर कि आप टॉयफल आईएल्ट्स दे के ही रखो. नेक्स्ट अप द 5th कंट्री इज इटली. हियर ऐसा यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है कि the government actually releases these public issues called Bando. I don't know if I'm pronouncing it right. It's spelled BANDO. It's some official announcement. तो जो universities होते हैं they publish a proper legal official statement कि हमारे पास इतने इतने vacancies है, ये funding है, सारी details वो publish करते हैं. उसके basis पे the government announces these BANDOs. तो यहाँ पे क्या होता है कि you have to मतलब after the government issues the decrees, then you have to upload your CV and your documents जो भी वो मांगेंगे. एंड गवर्नमेंट लाइक ऐसा एक प्रॉपर कमिटी होता है जो आपका सब डॉक्यूमेंट्स एंड CV एंड सब कुछ इवेल्युएट करेगी. देयर इज अ स्कोर गिवन इफ योर एप्लीकेशन सिक्योर्स अ मिनिमम स्कोर, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा. दो यहाँ पे ऐसे लाइक योर एप्लीकेशन विल बी इवेल्युएटेड बाय समवन यू माइट नॉट इवन नो, बट यू नेवर नो. राइटिंग कोल्ड ईमेल्स टू योर प्रोफेसर माइट एक्चुअली हेल्प. उनका कितना इन्फ्लुएंस है, क्या है. सो यहाँ पे भी ऐसे IELTS TOEFL इज नॉट नेसेसरी, बट इट्स MOI जहाँ पे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट जो आपको अपने इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा. अगर आप वो लोगे तो यू कैन बाईपास द TOEFL और द IELTS एग्जाम, बट इट्स ऑलवेज सेफ टू राइट दैट एग्जाम एंड कीप योर स्कोर्स रेडी. नेक्स्ट अप इज ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पे जो इनटेक है इट्स अ बिट डिफरेंट बिकॉज दे फॉलो द सदर्न हेमिस्फीयर का कैलेंडर. देर आर 2 intakes, February and March. यहाँ पे क्या होता है, यू लुक फॉर अ प्रोफेसर एंड यू राइट कोल्ड ईमेल्स टू देम. देन आप दोनों मिलके मतलब आपके प्रोफेसर और आप मिलके यू को ऑथर अ प्रोजेक्ट प्रपोजल विच हैज टू बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी का पोर्टल. मतलब जो February March वाला जो इनटेक सीजन है उसके लिए आई थिंक पोर्टल अभी खुल चुका रहेगा एंड इट क्लोजेज अराउंड 31st of August. तो यहाँ पे भी वो प्रोजेक्ट प्रपोजल के बेसिस पे आपको इवेल्युएट किए जाओगे एंड यू मे बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड. यू डू नीड योर TOEFLs और IELTS का स्कोर यहाँ पर. देन इज जापान. जापान में ऑल्सो यू नीड टू कोल्ड ईमेल योर प्रोफेसर स्टार्टिंग फ्रॉम September to November, like September, November. So there is obviously an informal interview. If the professor like is willing to take you in his lab, he will recommend you for the MEXT or MEXT scholarship, जो कि एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है. यहाँ पे जापान में भी 2 बार इनटेक होता है, आइदर अप्रैल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली अक्टूबर में होता है. सो एक और वे है, अगर आपका स्कॉलरशिप मतलब डायरेक्ट फैकल्टी के थ्रू जो स्कॉलरशिप अगर वो नहीं हो पाता है, यू कैन ऑल्सो राइट टू द जापानीज एम्बेसी इन इंडिया और यू हैव टू क्लियर अ प्रॉपर पर्टिकुलर एग्जाम जो उनका होता है. अगर वो एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो द गवर्नमेंट विल गिव यू द स्कॉलरशिप. और अभी आपके पास द ओनली प्रॉब्लम इज टू लुक फॉर अ फैकल्टी. इफ अ फैकल्टी इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग इट, तो आप बोल सकते हो कि ठीक है आपके पास अगर प्रोजेक्ट फंडिंग नहीं भी है, आई हैव माई ओन गवर्नमेंट का फंडिंग एंड दैट्स डन. सो दीज आर द 2 ways. अगेन IELTS TOEFL necessary, but you can bypass it. The last country is South Korea, where the application portal opens around September.
बट आप कोल्ड ईमेल अभी से स्टार्ट करना भेजना शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन इंटरव्यू भी होता है इफ़ द प्रोफेसर लाइक्स योर प्रोफाइल। यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए आपको कोई अलग से फंडिंग के लिए कोई अलग से एप्लीकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू गेट अ PhD ऑटोमेटिकली आपका फंडिंग भी सॉर्ट हो ही जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉप 10 कंट्रीज जहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं टू अप्लाई फॉर अ PhD। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, hit the bell button so that you get notified whenever I post a new video. Do let me know in the comments आपको और किन चीज़ों के बारे में वीडियो चाहिए, and don't forget to subscribe to our new channel BSMS Sarthi. Thank you for watching.